Hello friends, welcome to our channel Maths Battlefield by Ajay Yadav. क्वेश्चन है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें, ठीक है, क्या लेट करना है, यूनिट डिजिट को x एंड यूनिट डिजिट को y एंड टेंस डिजिट को x, राइट। सो थर्ड पार्ट, लेट टेंस डिजिट of number, let tens digit of number be x and let unit digit of number be equals to y, right। अगर digits ये है तो then what is the number, this implies what is the number will be 10x, then the two digit number is what, 10x plus y, right। This is the two digit number, and what will be the number obtained by reversing, and number obtained on reversing will be रिवर्स डिजिट्स को क्या, नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स, राइट। नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स विल बी व्हाट, 10y प्लस x, ठीक है। यूनिट की जगह पे टेंस एंड टेंस की प्लेस पे यूनिट, ओके। आफ्टर डूइंग दिस मच, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, कम टू द कंडीशन। व्हाट इज बीइंग सेड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। व्हाट इज देयर इन द फर्स्ट कंडीशन, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, राइट। डिजिट्स का सम कितना है, 9। डिजिट्स कौन कौन सी है, x और y, सो x प्लस y इक्वल्स टू 9। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, व्हाट इज बीइंग गिवन, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits, right। so you need not to write this, I am writing this to explain you। 9 times the number is equals to 9 times the number is twice का मतलब 2 times किसके, number on reversing, right, number on reversing। you need not to write this statement। तो 9 times of number क्या था, 10x plus y, right। generally most of the student what they do not put ब्रैकेट, राइट। इससे क्या लगेगा, 9 सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई है, 10 के साथ, नहीं, बट इन एक्चुअली इट इज मल्टीप्लाइड विद द होल नंबर। सिमिलरली 2 के साथ में आल्सो यू विल पुट द ब्रैकेट, एंड नंबर ऑन रिवर्सिंग इज व्हाट, 10y plus x, राइट। नाउ सॉल्व दिस शैल बी 90x plus 9y, and this will be multiply 2 inside, this will be 20y plus 2x, right। shift these variables, this shall be 90x and minus 2x, 90x minus 2x, right। and this shall be how much, minus 20y and minus 29 plus 9y, remain this plus 9y minus 20y equals to 0, right। so now this shall be 88x, and this shall be how much, minus 11y equals to 0, right। from this whole you can clearly see, ठीक है। in 9th class I have told you कि किसी भी इक्वेशन में अगर जो भी कॉमन आ रहा है, you have to always take that thing common। so in this 11 is common, take the 11 common, and this shall be 8x minus y equals to 0, right। so this 11 will go that side and become 0, and ultimately 8x minus y equals to 0। this is equation 2, right। now we will solve this equation by elimination method, right। okay, now check
whether we need to make any variable coefficient. अगर हम y को देखें तो y को कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है. बट अगर हम x को देखेंगे तो x का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो x को अगर हम इक्वल करेंगे तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट. सो वी विल गो फॉर ओनली वेरिएबल y, राइट. सो एक वेरिएबल y प्लस का है और एक माइनस का है, तो वी विल ऐड देम so that plus and minus get cancelled, right. So we will simply write first of all by elimination method, by elimination method, by elimination method. So this shall be first what we will do by adding equation 1 and 2, adding equation 1 and 2. So this shall be what, यहाँ लिख दीजिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और सेकेंड इक्वेशन में यहाँ लिख दीजिए 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. ऐड देम, ठीक है. एडिंग में साइन चेंज नहीं होते, बट वाइल सब्ट्रैक्टिंग वी हैव टू चेंज द साइन. तो प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल. 8x प्लस x will give you 9x and 9 plus 0 gives 9. Cut it, the value of x comes out to be 1, right. And this value of x we will put in the original equations, right. Now where are the original equation? First is this and second is this. So it's up to you in which equation you want to put. Let's say we are putting in equation 1, putting value of x in equation 1. So x plus y, मतलब 1 plus y equals to 9, and this y plus 1 will go that side, and 9 minus 1 will give you 8, right. So the value of y comes out to be 8. X और y की वैल्यू आ गई, right. But this is not our final answer. What we have to do, ठीक है, we have to find the 2-digit number, right. So we will tell what is the 2-digit number. I am writing here. So therefore you will write 2. Just write down the word required. Required 2-digit number, required 2-digit number is what? 10x. What is the value of x? 1 plus y. Y is 8. So this will be 10 plus 10 into 1 10, 10 plus 8 is 18. So their final answer is 18, right. I hope you have understood this question. Okay, this is very important question. Now pause the video and note it down. Now come to the question number 4th and 5th. 4th I am telling you like this only. You will solve it yourself. Okay, and after that we are coming on the question on 5th part. Okay, now let us understand 4th part. There is a girl, Meena. She goes to the bank. She goes to bank and banks, right? And Meena wants to take how much rupees? Rupees 2,000, right? Meena goes to bank to take out rupees 2,000, right? एंड बैंक वालों ने क्या किया, उसको 2,000 रुपए तो दिए, राइट. बट बैंक वालों ने उसको सिर्फ 50 रुपीज की नोट दी एंड 100 रुपीज की नोट दी, राइट. सो बैंक प्रोवाइडेड हर रुपीज 50 नोट एंड रुपीज 100 नोट, राइट. नाउ बट हमें ये नहीं पता कि 50-50 के कितने नोट्स दिए गए एंड 100 के कितने नोट्स दिए गए, राइट. बट दिस थिंग इज वेरी श्योर कि 50-50 के कुछ नोट्स दिए गए होंगे, 100 के कुछ नोट्स दिए गए होंगे, एंड उनको ऐड करके टोटल अमाउंट कितना बना होगा 2,000, राइट. एंड बट हमें ये नहीं पता कि 50 के कितने नोट्स थे और 100 के कितने नोट्स थे, बट वी वेरी वेल नो कि टोटल कितने नोट्स थे, राइट. टोटल नंबर ऑफ नोट्स वर हाउ मेनी?
25 notes, right? How much? 25 notes. तो let us say कि बैंक ने 50 रुपीज के कितने नोट्स दिए? X नोट्स. एंड 100 रुपीज के कितने नोट्स दिए? लेट्स से Y नोट्स, राइट? सो क्लियरली 50 के X नोट प्लस 100 के Y नोट, टोटल नंबर ऑफ notes are 25. So this will be your first equation. And second thing, 50 के कितने notes हैं? X, right? For example, you have 20 rupees, 3 notes. So 20 into 3 will give you how much rupees? 60. Similarly, 50 के कितने notes हैं? X note, right? इससे कुछ amount बन गया 50x. एंड 100 के कितने नोट्स हैं? Y. सो इससे अमाउंट क्या बन गया? 100y. और ये टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए? 2000. दिस इज योर इक्वेशन सेकंड, राइट? नाउ you will solve these two equation, but before that you can see in this 50 is common, so you will take 50 common. This will be x plus 2y equals to 2000, right? You can cut it by the table of you can cut it 0 से 0 got cancelled, and 5 1 जा 5 4 जा 20, 40 will come. So this gives you, do not let this as equation 2. So this shall be x plus 2y equals to 40. This is equation 2, right? Now clearly you can solve this. Now you have got two equations. You can solve this by elimination method, and you can clearly see यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? ऑलरेडी सेम है. y पे फोकस नहीं करेंगे, राइट? बिकॉज इसमें आपको कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा, बट x का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है यहाँ पर, राइट? So you can solve this by elimination method, ठीक है, and find out the value of x and y. और लास्ट में when you will find in the end, you will write number of rupees 50 notes and number of rupees 100 note, right? Okay. Now come to the fifth part. Okay, pause the video, note this down. Now, fifth part. Fifth part is also an important question. Okay. Now, let us understand this. There is a library. There is a library which gives book, but इस लाइब्रेरी का रूल क्या है कि they give you the book for in money, ठीक है? And how does ठीक है that money is scheduled? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फर्स्ट 3 days अगर आपने बुक, राइट, आपने बुक अगर कुछ दिनों के लिए ली है, ठीक है, तो इन दैट केस फर्स्ट 3 days के आपको कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे? एक फिक्स्ड अमाउंट है, राइट? ठीक है, दैट इज फिक्स्ड बाय लाइब्रेरी. वो 10 15 20 कुछ भी हो सकता है, राइट? एंड आफ्टर दैट 3 days के बाद, राइट, 3 days के बाद, दैट मीन्स उसके बाद अगर आप एक दिन भी ज्यादा रखते हो, ठीक है, उस हर एक दिन पे क्या लगेगी? आपको पेनल्टी लगेगी, राइट? और वो पेनल्टी हर दिन की है. हम वी डोंट नो, ठीक है. सो लेट्स से अमाउंट फॉर ईच डे इज y, राइट? ये लेट्स से ये फिक्स अमाउंट x है और अमाउंट फॉर ईच डे क्या हो गया? y. फॉर एग्जाम्पल मैंने बुक ली 7 दिनों के लिए, राइट? तो उन 7 दिनों के लिए, ठीक है, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 दिन के तो फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा, राइट? 3 days के, ठीक है, आई हैव गिवन द फिक्स्ड अमाउंट. नाउ आई हैव टेकन द बुक फॉर 7 days. 7 में से 3 days सब्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि उसके लिए मैंने कितना अमाउंट पे कर दिया? x, जो कि फिक्स्ड होता है हमेशा. नाउ हाउ मेनी डेज आर रिमेनिंग? 4, राइट? अब 3 दिन के बाद अगर मैं लेट करता हूं तो मुझे हर डे की क्या देनी पड़ेगी? पेनल्टी. तो मैंने कितने दिनों की पेनल्टी दी? 1 2 3 4, राइट? सो दैट मीन्स हाउ पेनल्टी विल बी फाइंड? एक दिन की पेनल्टी का कितना अमाउंट है? y रुपीज. तो 4 दिन की पेनल्टी कितनी हो जाएगी? 4y, राइट?
एंड ये टोटल कितना अमाउंट हुआ, ठीक है, दैट वी विल कम टू नो थ्रू क्वेश्चंस, राइट. सो दिस इज द होल सिनेरियो हाउ दिस क्वेश्चन इज, ठीक है, टू बी डन. सो लेट्स कम टू द, सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस ओनली. एक लाइब्रेरी है, राइट, which takes fixed charge for the first 3 days. फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज, ठीक है, जो यू कैन कंसिडर इट इज अ पेनल्टी फॉर ईच डे यू कीप द बुक आफ्टर 3 days. 3 दिन के बाद अगर आप एक भी एक्स्ट्रा दिन रखते हो तो हर एक दिन की पेनल्टी लगती है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट वी हैव टू लेट एक्स एंड वाई, ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम हियर वेरी क्लियरली. तो लेट the fixed charge, let the fixed charge for 3 days for first 3 days be equals to rupees x, right, and let the additional charge for each day, ठीक है, एडिशनल हर एक दिन का पेनल्टी कितनी है, रुपीज लेट्स से वाई, राइट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if you want you can also write let the additional charge for each day after 3 days is how much, rupees y, right. Now according to question, what is being said, Sarita pays rupees 27 rupees for a book kept for 3 days, right. There is a girl जिसने बुक कितने दिनों के लिए, 7 दिन के लिए, and how much amount did she paid, rupees 27, right. So now let us understand, ठीक है, कि there is a girl who paid how much rupees 27, right. उसने 27 rupees पे करे. Now अब ये 27 rupees उसने कैसे पे किए होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 3 दिन के तो फिक्स्ड अमाउंट लगा होगा, राइट. अब 3 दिन के बाद उसने जितने भी दिन बुक एक्स्ट्रा रखी होगी हर एक दिन की पेनल्टी लगी होगी. फ्रॉम she has taken book for 7 days, 7 में से 3 days तो यहाँ हो गए, रिमेनिंग हाउ मेनी डेज आर देयर, 4 days. तो हर 4 days की उसको क्या देनी पड़ी होगी, पेनल्टी. एक दिन की पेनल्टी थी y, 4 days की पेनल्टी इज 4y, राइट. तो ये हो गया पेनल्टी वाला चार्ज और ये हो गया फिक्स चार्ज. टोटल अमाउंट इज पेड बाय सरिता इज 27, राइट. सो राइट डाउन हियर x plus 4y equals to 27. This is your equation first. Now similarly there is a second girl, Susie, who paid rupees how much, 21, right. Again according to question, Susie ने भी क्या किया होगा, ठीक है, how much amount did Susie paid, 21. तो पहले 3 दिन की उसने भी क्या दिया होगा, फिक्स्ड चार्ज, and then she took the book for how many days, 5 days, right. 5 days में से 3 days यहाँ काउंट हो गया. So how many days are left now, 2. तो that means सुसी ने कितने दिन की पेनल्टी दी, 2 दिन की, और 1 दिन की पेनल्टी कितनी है, y. So 2 days की पेनल्टी will be 2y, right. Let this be equation second, right. Now again यहाँ हमें x का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल दिख रहा है, ठीक है. वी आर वेरी फॉर्चुनेट, ठीक है, और लकी कि हमें हर बार जितनी भी इक्वेशंस मिल रही है उनका कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, राइट. सो x का ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल है. अगर आप y पे फोकस करेंगे तो आपको इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करने का, 2 से. तो 2 2 is 4, ठीक है. तो ऑब्वियसली हम उस पर नहीं करेंगे, वी विल गो फॉर x. सो सिंपली जस्ट राइट डाउन बाय एलिमिनेशन मेथड, राइट. सो सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशंस को, दोनों प्लस में है, राइट. तो एक के साथ माइनस आ जाना चाहिए, देन ओनली इट विल गेट कैंसिल. सो व्हाट वी विल राइट, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2. Subtract equation 1 and 2. So this shall be x plus 4y equals to 27, right, and x plus 2y equals to 21. Subtracted, sign change कर दीजिए. Subtraction में we will always change the sign, right.
नाउ एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स, माइनस 4y में से 2y माइनस होगा, सो 2y एंड 27 में से 21 गया 6, कट इट, 2 3 6, वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी 3. अब इस वैल्यू ऑफ y को वी विल पुट इन इक्वेशन, लेट्स से सेकंड में पुट कर देते हैं, राइट. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, putting value of y in equation 2, right? So this shall be how much? X plus 2 into 3 equals to 21. So x plus 6 equals to 21 and x equals to 21 minus 6. So x equals to how much? 50, right? And circle it. What we were supposed to find? Okay. Find the fixed charge and the charge for each day. So we will, at last what we will write, therefore fixed charge equals to rupees 50 and additional charge इक्वल्स टू रुपीज 3, राइट. तो 15 रुपए उस लाइब्रेरी के फिक्स चार्ज है, और ठीक है, फॉर 3 डेज, और 3 डेज के बाद अगर आप कोई एक भी एक्स्ट्रा दिन रखते हैं, राइट, हर एक दिन के कितने 3 रुपीज यू हैव टू पे, राइट. सो दिस वाज योर होल एलिमिनेशन मेथड. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डीलिंग विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. टिल देन, जय हिंद, जय भारत.